নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ বিগ ব্রেকিংয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত। এগিয়ে আসছে লোকসভা নির্বাচন, আর সেই নির্বাচনের আগে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই কম বেশি চমক দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অন্ততপক্ষে ভোটকে পাখির চোখ করে। এই মুহূর্তের সবথেকে বিগ ব্রেকিং আপনাদের যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্স অডিট ডিপার্টমেন্ট নবান্ন মন্দিরতলা হাওড়া থেকে যে নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে, যার নম্বর 1235 FP ডেটেড 9/3/2024, আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। রাম নবমী উপলক্ষে 17ই এপ্রিল 2024 বুধবার পাবলিক হলিডে ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। আপনাদের জানিয়ে দিই, এই চিঠিতে অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর মনোজ পন্থ তার সই করা এই নোটিফিকেশন ইতিমধ্যেই কিন্তু সমস্ত অফিসিয়াল গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমনটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, ইন কন্টিনিউশন টু দিস ডিপার্টমেন্ট নোটিফিকেশন নাম্বার 6112F P2 dated 9/11/2023, the governor is pleased to declare 17th April 2024 Wednesday as public holiday on the occasion of Ram Navami under section 25 of the negotiable instrument অর্থাৎ NI Act 1881 অনুযায়ী কিন্তু যেমনটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, রাম নবমী উপলক্ষে কিন্তু ছুটি ঘোষণা করলো রাজ্য সরকার। আপনাদের জানিয়ে দিই, এর আগে এ নিয়ে কিন্তু একাধিক বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, কিন্তু সেই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আপনাদের যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব, যে তথ্য আমাদের কাছে এসছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নবান্ন মন্দিরতলা হাওড়া, সেই নবান্ন থেকে 9/3/2024 বিশেষ নোটিফিকেশন অনুযায়ী NI অ্যাক্টে অর্থাৎ নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট 1881 সেই অনুপাতে কিন্তু 17ই এপ্রিল 2024 বুধবারকে কিন্তু পাবলিক হলিডে রূপে ঘোষণা করা হলো। এই মুহূর্তের সবথেকে বিগ ব্রেকিং আপনাদের জানিয়ে দিই, যারা নতুন করে যুক্ত হলেন, ইন কন্টিনিউশন টু দ্য ডিপার্টমেন্টস নোটিফিকেশন নাম্বার 6112F P2 dated 9/11/2023, the governor is pleased to declare 17th April 2024 Wednesday as public holiday on the occasion of Ram Navami under section 25 of the Negotiable Instrument Act 1881 by order of the governor, সিগনেচার বাই ডক্টর মনোজ পন্থ, অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি টু দ্য গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আপনাদের জানিয়ে দিই, চিঠির প্রতিলিপি ইতিমধ্যেই কিন্তু সমস্ত সরকারি দপ্তরে পাঠানো শুরু হয়েছে। আজই কিন্তু 1235 নম্বর F যে নোটিফিকেশন, ফিনান্সের যে নোটিফিকেশন, সেই নোটিফিকেশন অনুযায়ী যেমনটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, 17ই এপ্রিল 2024 বুধবারকে কিন্তু পাবলিক হলিডে হিসাবে রাজ্য সরকার ঘোষণা করল। আপনাদের জানিয়ে দিই, ঠিক যেই মুহূর্তে লোকসভা ভোট দোরগোড়ায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই আপনাদের জানিয়ে দিই, সমস্ত রাজনৈতিক দল কিন্তু ভোটের জন্য ভোটকে পাখির চোখ করে কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং যথেষ্টভাবে কিন্তু অন্ততপক্ষে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছে। নিঃসন্দেহে যে বিষয় আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, প্রায় 111 জন লাইভ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে দেখছেন, 113 জন আমাদের সঙ্গে লাইভে দেখছেন। যে বিষয় আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, এই মুহূর্তের সবথেকে বড় খবর, বিগত দিনে এই ছুটি নিয়ে একাধিক বিতর্ক থাকলেও এবং রাজনৈতিক বলা চলে খেয়াখেই থাকলেও, যে বিষয়টা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে সেই তথ্য হচ্ছে যে ডিপার্টমেন্টের যে নোটিফিকেশন অর্থাৎ ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের নোটিফিকেশন 6112F ডেটেড 9/11/2023, গভর্নর কিন্তু অর্থাৎ আমাদের যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন, সেই রাজ্যপাল কিন্তু 17 এপ্রিল 2024 বুধবারকে কিন্তু রাম নবমী উপলক্ষে কিন্তু হলিডে হিসাবে ঘোষণা করলেন। এই মুহূর্তের সবথেকে বিগ ব্রেকিং আপনারা দেখছেন। আপনাদের যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব, নোটিফিকেশন নাম্বার নবান্নের নোটিফিকেশন, ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের নোটিফিকেশন নাম্বার 1235F P2 ডেটেড 9/3/2024, কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু এই নোটিফিকেশন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কিন্তু অবশ্যই রেডিওগ্রাম এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমেল মারফত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, in continuation to this department notification number 6112F P2 dated 9/11/2023, the governor is pleased to declare 17th April 2023 Wednesday as public holiday on the occasion of Ram Navami under section 25 of the Negotiable Instrument Act 1881 by order of governor, signatured by Dr. Manoj Pant, additional chief secretary to the government of West Bengal। প্রায় 150 জন এই আছে লাইভে আমাদের সঙ্গে 154 জন জুড়ে গেছেন। যে বিষয়টা জানানোর চেষ্টা করব, সব খবর সবার আগে আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ঠিক যেমনটা জানা যাচ্ছে যে এই ছুটি নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক তরজা কিন্তু কখনো কম হয়নি, কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, রাম নবমীতে
পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় তো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিই প্রচুর জনসমাবেশ হয়। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই ঈদ মিলাদুন্নবীর মতো রামনবমীতেও প্রচুর সনাতন ধর্মের মানুষ তারা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব রামের যে জন্মদিন, সেই জন্মদিন উপলক্ষে সেই হচ্ছে তারা কিন্তু শোভাযাত্রা বা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন, একাধিক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে। এবং সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আপনাদের যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব যে 17 এপ্রিল 2024 বুধবারকে পাবলিক হলিডে হিসাবে এনআই অ্যাক্টের 1881 যে এনআই অ্যাক্ট রয়েছে সেই এনআই অ্যাক্ট অনুযায়ী কিন্তু হচ্ছে অবশ্যই আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ তথ্যই আমাদের কাছে রয়েছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু অনেকেই হচ্ছে আমাদের কাছে কমেন্ট লিখছেন। আনসার চৌধুরী লিখছেন বেস্ট রিপোর্টার অফ ইসলামপুর সাব ডিভিশন, ইট ইজ ফর অল অফ ইউ। কিন্তু আমরা যে আপডেট যখন পাই যেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের কাজে আসবে, মানুষের জানার জন্য কাজে লাগবে, সেটা কিন্তু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। এমনি মুজাহিদ আলম লিখছেন স্যার बगलबारी में क्या हुआ था बताए नहीं। अच्छा, बगलबारी में क्या हुआ था इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़रूर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको बता देंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ी खबर जो है आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फाइनेंस डिपार्टमेंट नवान्नो के तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 1235 एफ विदिन ब्रैकेट P2 डेटेड 9/3/2024 आज के ही नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 अप्रैल 2024 को बुधवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में छुट्टी घोषणा कर दी गई है। ऐसा ही ऑर्डर आ गया है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इसके तरफ से, कह सकते हैं डॉक्टर मनोज पंत ये नोटिफिकेशन जारी किए हैं। और आपको बता दें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मनोज पंत के सिग्नेचर के हुआ ये नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। तकरीबन 160 लाइव व्यूअर्स आप सब देख रहे हैं। अभी का लेटेस्ट न्यूज़ क्या है भाईजान? जी मोहम्मद सवाज भाई दिन भर जो था वो तो आपको बता दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है खास करके जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या स्कूल में नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आपको बता दें कि रामनवमी और मिलादुन्नबी में देखा जाता है जैसे कि मिलादुन्नबी में इस्लामिक लोग या जो कह सकते हैं मोहम्मदन लोग, वो लोग काफ़ी तादाद में जुलूस निकालते हैं। और उसी तरह से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में आपका रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। कोई अनटोवर्ड्स इंसिडेंट ना हो इसके लिए काफ़ी पुलिसी तैनाती के साथ ये दोनों पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अपने अपने मजहबी तरीके में सब कोई मनाते हैं। लेकिन इस बार बता दें कि छुट्टी नहीं दिया करता था गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। इसके लिए कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बनाया करते थे। और इस बार इस इशू को तोड़ के आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फाइनेंस एंड ऑडिट डिपार्टमेंट नवान्नो मंदिर तला हावड़ा से यानी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जैसा बताया गया है कि 17 अप्रैल 2024 बुधवार को पब्लिक हॉलीडे दिया जाएगा। और इसके सिलसिले में आपको बता दें कि रामनवमी के शुभ अवसर पर 25 सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी एनआई एक्ट जो कहा जाता है इसके तहत छुट्टी रहेगी। तो इसलिए आपको बता दें कि उस दिन जो है आपको बता दें कि सभी तरह के सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी ऑफिस हो, महकुमा शासक के दफ्तर हो, ब्लॉक ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, सभी बंद रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें स्कूल कॉलेज में भी छुट्टियां दे दी जाएगी। यानी ये एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन किया गया और इसका जो कॉपी है इस कॉपी को सभी तरह के आला अधिकारियों के पास पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें रामनवमी के शुभ अवसर पर 17 अप्रैल 2024 को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से 17 अप्रैल 2024 बुधवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर छुट्टी दी गई है एनआई एक्ट के तहत। और आपको बता दें इसका कॉपी फॉरवर्ड कर दिया गया है फॉर इन्विशन टू द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल A&E वेस्ट बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 1, टू द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट वेस्ट बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग कोलकाता 1। उसके बाद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, द सीनियर personal secretary to the chief secretary to the government of West Bengal, to the senior PA of HMOS IC finance। साथ ही साथ आपको बता दें द रेसिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल न्यू दिल्ली, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, द कमिश्नर ऑफ ऑल डिविजन्स, ऑल बेंगल डिविजन्स, the Director General and Inspector General of Police West Bengal, the Commissioner of Police Kolkata, the District Magistrate or District Judge, Superintendent of Police of all Bengal, the Subdivisional Officers of all Bengal, the Director of the Director of Treasuries and Accounts West Bengal, the Accounts Officer West Bengal Secretariat, Vikas Bhavan, Salt Lake, Kolkata, the Pay and Accounts Officer Kolkata P&O Office 1, 2 and 3, the Treasury Officers of all Treasuries, the Section Officer of and DDO of Finance Department, Commissioner of Special
Commissioner of Special Secretary, Additional Secretary, Joint Secretary or Deputy Secretary of Finance Department, and Sri Sumit Mitra, Network Administrator, Finance Department, for uploading this notification in the Finance Department. जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े आप सभी को बता दें कि हर साल ही कह सकते हैं कि जैसे कि मिलादुन नबी इस्लामी मज़हब के लिए और साथ ही साथ राम नबी सनातनी या हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं जुलूस और निकाला जाता है और साथ ही साथ बड़ा त्यौहार के तहत मनाई जाती है। और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि 2024 के लोकसभा से पहले कम से कम अपने वोटर को शांत लेकर के उनके मन जय करने के लिए सभी तरह के प्रचेष्टाएं सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो और मौजूदा सरकार के तृणमूल कांग्रेस हो, वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से आप सभी को बता दें कि 17 अप्रैल 2024 बुधवार को पब्लिक हॉलिडे एनआई एक्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1881 के तहत दिया गया है। ये अपडेट था अब तक। और हम आपको बता दें ऑल इंडिया हॉलिडे रहेगा क्या ओनली बंगाल में सिर्फ। एनआई एक्ट में आपको बता दें, एनआई एक्ट ऐसा चीज़ होता है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, जो कि अपने स्टेट में कोई भी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट उसका एक इख्तियार रहता है कि वो अपने स्टेट में छुट्टी घोषणा करे। तो इसी तहत आपको बता दें कि सभी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यूज़ करके इसमें छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन आपको बता दें जो भी स्टेट में छुट्टी घोषणाएं होगी तो उस दिन बैंक से लेकर के सारे जो सरकारी प्रतिष्ठान हो या गैर सरकारी प्रतिष्ठान हो वो छुट्टी हो जाएगी और छुट्टी रहेगा। और आपको ही बहुत सारे लिखे हैं कि दादा हॉस्पिटल का ओपीडी की बंद থাকবে कृष्णचंद्र शर्मा इलेक्शन। देखिए 17 अप्रैल सबसे बड़ी बात है, एक इमरजेंसी डेट के तहत माना जाता है, क्योंकि उस वक्त प्रशासन से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट सबको ही को सचेत रहना पड़ता है, प्रेस मीडिया को सचेत रहना पड़ता है कि कहीं किसी प्रकार के अनहोनी ना हो, किसी प्रकार के अनटोवर्ड्स इंसिडेंट ना घटे। इसीलिए कह सकते हैं कि कोई दुर्घटना हम कभी भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो खुला हुआ रहता है। इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इमरजेंसी तो रहेगी, ओपीडी भी खुला रहेगा, इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेकिन छुट्टियां रहेगी सरकारी ऑफिसेस, इसके बारे में आपको जानना है। बहुत सारे लोग हैं, रत्ना गोप लिख रहे हैं, धन्यवाद बीआई मौशाई, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये इसके बारे में सूचित करना हमें बहुत ज़रूरी था। और आपको बता दें ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, इसके तरफ से भी एक नोटिफिकेशन गेजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी में दे दी गई है। In pursuance to the clause 1 of section 11 of the Chief Election Commission and other election commissioners appointment conditions and service of terms of office act 2023, the president is pleased to accept the resignation tendered by Sri Arun Goel election commissioner with effect from 9th March। अच्छा, और एक अपडेट है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके बारे में आपको बता दें कि 9th March 2024 का है कि जो एक रेजिग्नेशन के बारे में कहा गया है, यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये दे दिया गया। इन परसुएंस टू क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट condition of service and terms of Act 2023, the President is pleased to accept the resignation tendered by Sri Arun Goel, Election Commissioner, with effect from 9 March 2000। श्री इलेक्शन कमिश्नर जो है अरुण गोयल, ये देश के महामहिम राष्ट्रपति के पास शायद रेजिग्नेशन भेजे थे और इसको एक्सेप्ट कर ली गई है। इसका भी ये नोटिफिकेशन हो गया, आपको बता दें। और ये डॉक्टर राजीव माने सेक्रेटरी जो है उसके तरफ से द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी में इसका पब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली द 9th March 2024 गया। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी हम आपको और भी देखने की कोशिश करेंगे। रेहान राजा लिखना, जब्बार भाई सलाम वालेकुम, कोलकाता मीटिंग में नहीं गए क्या? सबसे बड़ी बात है कि आई हैड सम मोर असाइनमेंट्स इन माय ओन एरिया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस दिन कोलकाता में मीटिंग है वहाँ इस्लामपुर में ही कह सकते हैं कि मेरा बहुत सारा अपॉइंटमेंट और असाइनमेंट्स हैं। तो इस तरह से अपना जगह को भी छोड़ना नहीं है। वहाँ हमारे असाइन रिपोर्टर्स हैं जो इसके बारे में काम करेंगे और वो असाइन रिपोर्टर्स आपको डिटेल्स जो खबर है वो खबर देते रहेंगे हमारे चैनल को, और हम आपको भी दिखाते रहेंगे। लेकिन मायूस मत होइए, उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो लाइव स्ट्रीमिंग हम जरूर आपको दिखाएंगे। रेहान राजा लिखते हैं, जब्बार भाई सलाम वालेकुम, कोलकाता मीटिंग में नहीं गया। यही था। बहुत सारे हैं, एमडी आज़ाद लिख रहे हैं, हाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो खबर हमको सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले मिलती है उसके बारे में हमारे टीम हमेशा चकित रहते हैं, सजाग रहते हैं, और आपको इसके बारे में इत्तला देना हम अपना फ़र्ज़ व कर्तव्य समझते हैं। किंतु आप हमें इस तरह का सहयोग दें और लोगों तक जिस तरह से हम हमारे सब खबर को आप शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, उसी तरह से पहुंचाते रहें, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा काम है।
हम खबरी हैं, यही सबसे बड़ी बात है। हम खबरी हैं और खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने आप को अपडेटेड रखने के साथ साथ जनता जनार्दन को अपडेटेड रखना भी हमारा एक फर्ज या कर्तव्य बनता है। और जिस तरह से उम्मीद आप लोग हमेशा जताते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ को, पब्लिक इश्यूज़ को उठाना है और उस मुद्दों को सॉल्व करने में गवर्नमेंट को मतलब उसके तरफ नज़रअंदाज अगर ना करे तो उसके लिए उसके तरफ उसका निगाहों को बदलना है। यही सबसे बड़ी बात है, ये कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों में कह सकते हैं 2-3 महीनों में कुछ इस तरह के मुद्दे न्यूज़ टुडे इंडिया ने उठाया। ठोस कदम कह सकते हैं गवर्नमेंट को या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग सचकित करने की कोशिश किए और उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट डे के कोई मतलब लाइव इंटरेक्शंस में कि न्यूज़ टुडे इंडिया के खबर के वजह से कौन सा काम जो काम एकदम रुका हुआ था या नहीं हुआ था, कह सकते हैं कि 25-30 साल का समस्या था, वो हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन इसके तरफ ध्यान देते हैं। इसी तरह की छोटी बड़ी खबर हम देखने की कोशिश करें। गुफरान आलम लिख रहे हैं, बेस्ट न्यूज़ रिपोर्टर इन आवर लोकेलिटी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। फारूक आजम जब्बारदा खावा दा हो गया कि आपको ये अपडेट देने के बाद ही इंशाल्लाह हम खाना ज़रूर खाएंगे। आप लोग अपना डिनर ले लीजिए और सबको खुशहाल रहिए। लेकिन ये अपडेट जो है, ये अपडेट आपको बता दें कि ये छुट्टियां जो होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एनआई एक्ट में जो छुट्टी होता है, ये देने से थोड़ा सरकार को भी राहत मिलती है और ख़ास करके जो सरकारी नौकरी करते हैं या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं उन लोगों को इसलिए राहत पहुँचता है। सबसे बड़ी बात है कि अच्छा, इफ्तिकार आलम का आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी गुड गुफरान आलम, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात है, आपको इत्तला या आगाह इसलिए करते हैं कि लोगों को तरह तरह के तंगस्तियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग कभी देखते हैं कि लोग नेगोशिएबल यानी एक्ट में अचानक छुट्टी घोषणा होगी, लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं, बैंक में माँ बहनें आते हैं या कह सकते हैं उम्रदर आदमी आ जाते हैं, आके घूम जाते हैं, हम लोग का नज़र में पड़ता है। इसीलिए ये अपडेट्स हम हमेशा लेट नाइट क्यों ना हो आपको देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बहुत ऑफिशियल ज़रूरी काम है उसी दिन रख लेते हैं और इसके वजह से उन लोगों को घूम के जाना पड़ता है। तो इसलिए अंजार अहमद आपका बोलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़ोरदार है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स अंजर भाई। सबसे बड़ी बात है, ये आवाज़ बुलंद तो आप लोगों के लिए होता है और आप लोग हमेशा जिस तरह से सराहते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तभी सभी लोग तक पहुंच जाए। हमारे लाखों हज़ारों जो दर्शक श्रोताएं हैं उन लोगों के पास पहुँचते क्या होता है, वो लोग इन्फॉर्मेशन पा जाते हैं और लोगों को बहुत सारे जो असुविधाओं का सम्मुखीन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, वो उसे बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें कि मिलादुन नबी हमारा जो होता है जुलूस मोहम्मदी, उसके दिन उस दिन को या फिर कह सकते हैं रामनवमी के दिन ये सब चांद देख के होता है। तो क्या होता है कि छुट्टी के बारे में गवर्नमेंट को भी थोड़ा दिक्कत उठानी पड़ती है। नजमुल हक का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कि छुट्टी कब दी जाए, अगला दिन या बाद के दिन, तो इससे प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात है जो सरकारी ऑफिस हो या गैर सरकारी ऑफिस हो, खास करके इंस्टीट्यूशंस में जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, हम लोग को क्या होता है कि उस दिन स्टूडेंट्स जो है उसका अटेंडेंस बहुत ही कम हो जाता है, तो ना के बड़ा भी हो जाता है, इसलिए बहुत तंगस्तियों का सामना करना पड़ा है। और हालांकि आपको देखें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर मानिए कि आपका स्कूल में अटेंडेंस नहीं, ज़ीरो अटेंडेंस है, लेकिन एमडीएम आपको चलाना ही है, तो अगर बच्चा ही नहीं है तो एमडीएम किस तरह से चलाएंगे। तो इसके लिए भी आपको कभी कभी शोकोज आ जाता है कि बच्चा क्यों नहीं, या फिर आप आज ज़ीरो क्यों हो गया। तो ये सब तंगस्तियों का जो सामना करना पड़ता है, इससे हम लोग को कम से कम छुटकारा मिलेगा। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। सब कोई सचेतन रहिए और सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात है, বিপ্লব দাস বলছেন দাদা তুমি সুস্থ থাকো আর এইভাবেই আমাদের আপডেট দিতে থাকো। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট। থ্যাংক ইউ বিপ্লব, আমাদের মাইলস্টোন ভিউয়ারের মধ্যে পড়ো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এই আপডেটটা আপাতত এখানেই শেষ করছি। সোহাব আলম লিখছেন সালাম আলাইকুম, ওয়ালাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ। দিস ইজ চিফ রিপোর্টার নিউজ টুডে ইন্ডিয়া সাইনিং অফ and meeting you in the next live with some important updates. Have a nice day, nice night, good night, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। लेकिन इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको ये खबर मिल जाए और लोग कम से कम उन लोगों को जो परेशानियाँ होती हैं उस परेशानी वो लोग दूर रहें।